Students, today we are going to discuss some of the important concept about depreciation. And if you learn or if you watch this video till end, then your all doubts about the depreciation will get clear. So before I start my channel, please do like, share, and subscribe for more videos like this. So your concept of direct tax as well as indirect tax will get clear. Now, depreciation, how to calculate depreciation in income tax. The In one of the video I already discussed about depreciation, theory of depreciation. Today we will focus different problem sums so that your concept of depreciation gets clear. So let's take question number 1. On April 1, 22, depreciated value of the block of asset, rate of depreciation is 15%, is rupees 80,000. It consists two plants, plant A and D. The assessee purchased plant C. Rate of depreciation 15% during the previous year 22-23 for 30,000 and sells plant A on May 3, 2022 for rupees 1,80,000. In this case, on March 31, 2023, the assessee has plant B and C in the block of the asset. Though the written down value of the block is zero, no depreciation is admissible for previous year 2022-23, that is assessment year 23-24, is as is evident from the computing given below. तो यहाँ पे इनकम टैक्स में थोड़ा अलग बात होता है कि जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखो आपने स्टार्ट किया ब्लॉक का, तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक कंसिस्टिंग प्लांट ए एंड बी 80,000 था। एक्चुअल प्लांट ऑफ कॉस्ट जो आपने परचेस किया वो 30,000 था। टोटल हो गया 1,10,000। बट आपने सेल कंसिडरेशन किया था 1,80,000 का। इसका मतलब आप यहाँ पे 1,10,000 माइनस करोगे, 1,80,000 तो माइनस कर ही नहीं सकते, बिकॉज ब्लॉक का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आपने माइनस किया तो आपका ब्लॉक रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक कंसिस्टिंग प्लांट बी एंड सी, अभी भी आपने प्लांट ए बेचा है बट अभी भी ब्लॉक में बी एंड सी बचा हुआ है, फिर भी ब्लॉक का वैल्यू जीरो हो गया है, इसलिए इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 1,10,000 आपका टोटल हो रहा था और आपने सेल 1,80,000 का हो गया था, और ये जो 70,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 में मानेंगे। इसलिए जब ब्लॉक का वैल्यू जीरो हो जाता है और ब्लॉक में असेट बचा हुआ है, then also depreciation will not be charged. So that is why depreciated value of the block consisting plant B and C on April 1, 2023, that is next year, on which value you will charge depreciation, that is nil, because here depreciation is nil, block value is zero, so that is why no depreciation is available. So that is the basic concept. What they this comes in exceptions. When your block value becomes zero, there is no depreciation allowed अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब उसी तरह से कई बार क्या होता है कि ब्लैंक ब्लॉक जीरो नहीं हो रहा है बट ब्लॉक एम्प्टी हो जाता है, ब्लॉक का वैल्यू जीरो नहीं है। जैसे यहाँ पे प्लांट ए एंड प्लांट बी आपके पास April 1, 2022 में था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, डेप्रिसिएटेड वैल्यू April 1, 22 2,37,000। Now the company purchased plant C on May 31, 2023 for rupees 20,000 and sells plant A and the company purchased plant C on May 31, 2023 for rupees 20,000 and sells plant A on April 10, 2022, plant B on December 12, 2022 and plant C on March 1, 2023. So now for rupees 10,000, 15,000 and 24,000. Return down value of the block asset will be determined as under. So your opening WDV is 2,37,000, प्लांट परचेस किया आपने 20,000 में, टोटल आपका सेल है दोनों तीनों असेट को मिला के 10,000, 10, 15,000 एंड 24,000, ये तीनों को मिला के 49,000 में सेल किया, और आपका ब्लॉक का जो रिटर्न डाउन वैल्यू है लास्ट डे पे 31 मार्च 2023 में वो है 2,08,000, और फिर भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन आप 15% क्लेम नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज यहाँ पे ब्लॉक में असेट ही नहीं है। इफ देर इज नो असेट, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज।
और 2,08,000 जो है वो आपका कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा। हमेशा डेप्रिशिएबल असेट होता है, उसमें जो भी गेन या लॉस अराइज होता है उसको हम शॉर्ट टर्म ही बोलेंगे, एंड इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, एंड इट इज कंसिडर अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 2। और नेक्स्ट डे जो ब्लॉक ऑफ द एसेट है, 1 अप्रैल, जो 1 अप्रैल 2023 विल बी टेकन एज नील, और दूसरे साल आपका जो ओपनिंग डब्ल्यू होगा वो नील लेने का है, और जो 2,08,000 है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में कंसिडर कर देना है। हाँ, अगर आपने ये 2,57,000 है में सेल किया होता, मान लो कि इन द केस स्टडी गिवन अबाउ प्लांट ए बी एंड सी आर ट्रांसपोर्ट फॉर अ कंसिडरेशन विच इज हायर देन रुपीज 2,57,000 से ज्यादा, जैसे मान लो कि 3,57,000 में सेल किया होगा, तो आपका जो 1 लाख है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आप कितने प्राइस में बेच रहे हो। अगर उसको कम प्राइस में बेच रहे हो तो लॉस माना जाएगा, और ज्यादा प्राइस में बेच रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। बट डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा अगर आपने कम प्राइस में बेचा, बिकॉज यहाँ पे असेट ही नहीं थी आपके पास। नाउ इम्पोर्टेड कार्स। अब यहाँ पे थोड़ा, if in imported car was acquired during March 1, 1975 and March 31, 2001, depreciation is not admissible। मीन्स अगर इस ड्यूरेशन के टाइम में अगर आपने कोई असेट परचेज किया है तो आपको कोई डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और बाद में अगर परचेज किया है तो दैट मीन्स इट इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। एक याद बात यहाँ पे आपको याद रखना है, डेप्रिसिएशन इज नॉट एडमिसिबल अनलेस इट इज यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग इट ऑन हायर फॉर टूरिस्ट और फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया। हाँ, अगर यहाँ पे क्या बोला है कि आपने 1975 से 2001 में कार को इंपोर्ट किया है एंड डेप्रिसिएशन इज नॉट एडमिसिबल। हाँ, अगर आप उसको टूरिस्ट पर्पस के लिए या बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया में यूज करते हो तो उसका डेप्रिसिएशन एलिजिबल है। बट जो कार आपने 2001 मार्च 31, 2001 के बाद परचेज किया है उस पे तो इंपोर्ट किया है उस पे आपको डेप्रिसिएशन मिल ही जाएगा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आप कोई भी असेट को put to use, when an asset is put to use for less than 180 days in the year of acquisition, then whatever depreciation rate is available, you will get 50% of that rate। मीन्स आपको जितना भी डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए उससे 50% ही मिलेगा, बिकॉज आपने उसको 180 डेज से कम दिनों के लिए यूज किया है। बट उसके लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इसको प्रीवियस ईयर में परचेज करना जरूरी है और उसी साल उसको यूज करना है 180 डेज के लिए। इफ those two conditions are satisfied, if the asset is acquired during the previous year and if it is used put to use for less than 180 days, then only this condition applies। means अभी उसको समझने के लिए थोड़ा बहुत एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट। बट यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। द अफोरसेड रिस्ट्रिक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इन द ईयर इन विच एन असेट इज अक्वायर्ड एंड नॉट इन अ सब्सिक्वेंट ईयर। मीन्स जिस साल आपने परचेज किया है उसी साल ये एक्सेप्शन एप्लीकेबल है। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में तो पूरा डिप्रिसिएशन आपको मिलेगा ही। Since in case of partition of joint Hindu family, dissolution of firm, conversion of firm into company, no asset is acquired by successor। यानी जब अगर कोई पार्टीशन हो रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, या फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, या फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, फिर जैसे फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई तो कंपनी के पास असेट आया। अब उसने जब कंपनी के पास असेट आया तो उसने 180 डेज के लिए कम यूज किया है, पर यहाँ पे ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे आपने कंपनी ने कोई नया असेट परचेज नहीं किया है। कंपनी को फर्म की तरफ से जो उसका असेट था वही उसको मिला है, तो इसलिए ये कंसेप्ट, ये एक्सेप्शन 180 डेज वाला इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे एक फर्म थी उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया आपने, अब कंपनी के पास बहुत सारा असेट आ गया फर्म की तरफ से, तो अब ये कंपनी ने कुछ नया असेट परचेज नहीं किया, ये फर्म का ही असेट है, तो दैट इज वाई उसको ये 180 डेज वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। If an asset is kept ready for use for more than 180 days before the end of the previous year, but actually used for less than 180 days, the aforesaid restriction would not apply। आपने ready रख दिया था because this is view in line that interpretation of the code that use includes ready to use। use and ready to use same word है, इसलिए ये कोई restriction applicable नहीं होता। जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा है, एक्स लिमिटेड परचेज एन ओल्ड प्लांट, उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% था।
on May 2022. It is put to use on January 10, 2000. I think 23 will come here because 22 is there. That means 23 will come. In this case, plant is acquired during 22-23, and in 22-23 it is put to use for less than 180 days, क्योंकि जनवरी 10 2023 में उसको यूज किया है. इसका मतलब अगर आप दिन काउंट करोगे, इफ नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे आप, तो 180 डेज से कम ही आएगा. इसलिए अब उसको 15% डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. 15% का जो हाफ होगा वो डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा, दैट इज 7.5. तो यही आपको कंसेप्ट समझना है कि जिस साल परचेज किया है उस साल उसको अगर 180 डेज के लिए या 180 डेज से कम डेज के लिए यूज किया है, तो फिर उसमें जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट है उसका हाफ यानी 50% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा. यहाँ पे वाई लिमिटेड परचेज ए प्लांट, अब यहाँ पे 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था ऑन 10 May 2022. It is put to use in January 10, 2023. In this case, plant is acquired 22-23 and 22-23 it is not put to use at all. उस साल उसको यूज नहीं किया. And therefore for previous year 22-23 no depreciation will be available क्योंकि उसको यूज नहीं किया. It is put to use in previous year 22-23. यहाँ पे हम previous year 23-24 कर देते हैं. So for previous year 23-24 the usual depreciation will be available. Means next year जो asset आपने यूज करने वाले हो 23-24 में, वो आप 180 डेज से कम यूज करोगे तो भी आपको 15% पूरा ही डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, बिकॉज ये एक्सेप्शन पहले साल के लिए ही होता है. नेक्स्ट ईयर आपको उसको 5 दिन के लिए यूज करो या 6 दिन के लिए यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट ईयर उसका पूरा ही डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. एक्स लिमिटेड ओन्स 2 बिल्डिंग ए एंड बी ऑन April 1, 2022. ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको 2.5 मार्क्स में आ सकता है. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, डेप्रिसिएटेड वैल्यू 14,15,700. और उन लोगों ने प्लांट बिल्डिंग सी परचेज किया है. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है इसमें भी, यानी पूरा ब्लॉक का वैल्यू, पूरा ब्लॉक है उसमें हमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. नाउ उन लोगों ने प्लांट सी को परचेज किया था 4,10,000 में, बट 3,10,000 का जो पेमेंट हुआ है वो अकाउंट पे ही चेक से हुआ है, और जो 1 लाख का पेमेंट हुआ है वो कैश से हुआ है. और ऐसा एक रूल है कि सेक्शन 40 सब सेक्शन A3 में 40A3 में ऐसा रूल है कि अगर आप पेमेंट कैश से करते हो तो ऐसा एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है. अब आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन सिर्फ 3,10,000 पे ही माना जाएगा. आपका परचेस 3,10,000 का ही माना जाएगा इंस्टेड ऑफ 4,10,000. ये आपको बात याद रखनी है. तो अब आप जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो तो आप कौन सा वैल्यू कंसीडर करोगे, 4,10,000 या 3,10,000? तो 3,10,000. 1 लाख को डिसअलाउंस हो जाएगा. अब बिल्डिंग ए को उसने सेल किया है और जनवरी 10, 2020 को सेल किया 8,70,000 पे. अब यहाँ पे देखो, आपने बिल्डिंग जो सी परचेज किया है वो दिसंबर 1, 2022 में परचेज किया है. अब इसको, ये डेट को आपको ध्यान में रखना है कि ये डेट इंपॉर्टेंट है कि आपने इस डेट को, दैट मीन्स अगर आप दिसंबर में कोई भी असेट परचेस करते हो, इसका मतलब उसको 180 डेज से कम यूज करने वाला. तो इस पे जो भी डेप्रिसिएशन मिलेगा 3,10,000 पे, उस पे 10% नहीं मिलेगा, उसका 5% ही मिलेगा. वो आपको बात ध्यान में रखनी है, जो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे भी. चलो देखो, अब ध्यान से वापस देख लो. Depreciated of the block is value as on 1st April 22, 14,15,700 था. कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सी था जो उसने परचेस किया था 3,10,000. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये 4,10,000 आपको कंसिडर नहीं करना है. टोटल हुआ 17,25,700. अब बिल्डिंग ए को सेल किया है, सेल प्रोसीड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 8,70,000. व्हाट इज लेफ्ट नाउ? 8,55,700. अब 8,55,700 है ना, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब आपको इसमें दो बाइफर्केशन करना होगा. एक 3,10,000 का होगा जिसको आपने 180 डेज से कम यूज किया है, और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पे आपको पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा. तो इस पे आपको 180 डेज से कम यूज किया है तो 5% डेप्रिसिएशन मिलेगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है इसमें से ये जो माइनस करोगे उसमें आपको
पूरा डेप्रिसिएशन 10% मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे काउंट करना है। तो देखो आप समझ लो यहाँ पे कि ये 70,070 रुपीस डेप्रिसिएशन कैसे आया। As building C is purchased in the year 22-23 and it is put to use for less than 180 days, depreciation on 3,10,000 will be 50% of 10% of rupees 3,10,000 and on remaining amount depreciation will be 10%, that is 8,55,700 minus 3,10,000। तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 70,070 rupees. Depreciated value of block on April 1, 22-23 is 7,85,630। यहाँ पे ये सम खत्म होता है। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन भी दिया है कि मान लो कि ये जो प्लांट ए आपने सेल किया है वो आपने 15,87,000 में सेल किया होता तो क्या सिचुएशन आती। तो चलो अपने वहां पे स्टार्ट करते कि देखो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था आपका 14,50,700, फिर से हम स्टार्ट करते। बिल्डिंग सी आपने परचेज किया, टोटल हुआ। बिल्डिंग ए आपने सेल किया 15,87,000 में, अब आपके पास बचा है 1,38,700 ओनली। अब 1,38,700 के आप दो बाइफर्केशन तो यहाँ पे कर ही नहीं सकते, तो जो भी वैल्यू है वो 3,10,000 में ही है, उस ऐसा आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और ये 3,10,000 का ही पार्ट है क्योंकि बिल्डिंग जो सी परचेस किया था उसको आपने 180 डेज से कम यूज किया है, तो इस पे भी आपको डिप्रिसिएशन 1,38,700 है, उस पर 10% चार्ज नहीं करना है, सिर्फ 5% ही चार्ज करना है। So depreciation as the written down value is lower than the cost of building C, which is put to use for less than 180 days. Depreciation shall be 50% of 10% of rupees 1,38,700। तो आपको इसका 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो ये इतना आ जाएगा और जो रिमेनिंग आएगा वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑन April 1, 2023 आ जाएगा, तो 1,38,31,765 आ जाएगा। तो इस तरह से आप डेप्रिसिएशन का पूरा कंसेप्ट समझ गए हो कि कोई भी एसेट आप अगर आप 180 डेज के लिए ज्यादा यूज करते हो पहले साल में तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, अगर कम यूज करते हो तो हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर जो पोर्शन नया पोर्शन बचता है वो हमेशा जो नई एसेट परचेस किया है उसी का हिस्सा होता है। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का रेट दिया है, जैसे कोई बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, उस पे 5% लगता है, कमर्शियल बिल्डिंग है उस पे 10% लगता है, और अदर टेम्पररी कंस्ट्रक्शन है उस पे 40% लगता है, फर्नीचर पे 10% लगता है। ये आपको थोड़े बहुत ये रेट याद रखना पड़ेगा। नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी है तो 15% और इंटेंजिबल एसेट पे 25% लगता है। एक एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी कंसेप्ट है, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 डबल आई ए, उसमें ऐसा है कि अगर कोई असेट आपने परचेस किया है और 31 मार्च 2005 के बाद परचेस किया है, एंड इफ यू आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन, अगर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन के बिजनेस में हो अदर देन पावर जन बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो उसको पहले साल, सिर्फ पहले साल 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। यानी गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बिजनेस को, इसलिए गवर्नमेंट ने ये 20% एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया। जैसे मान लो कि कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज किया है और आपका बिजनेस प्रोडक्शन का है और उस पर 15% डेप्रिसिएशन नॉर्मल तो मिलता ही है, और उसका एक्स्ट्रा 20% भी मिल जाएगा, तो पहले साल आपको कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, 35%। सेकेंड ईयर ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता। बट याद रखो कि ये 2005 के बाद इंप्लीमेंट हुआ था और ये ट्रेडर को अवेलेबल नहीं है, जो बिजनेस परचेस और सेल करता है उसको ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, जैसे अगर आपने पहले साल असेट परचेस किया है और उसको 180 डेज से कम यूज किया है, तो एडिशनल रेट का जो डेप्रिसिएशन है वो 20% से रिड्यूस होके 10% हो जाएगा। क्योंकि कंसेप्ट तो बहुत ईजी है कि जब भी आप कोई आईडी असेट परचेस करते हो और उसको 180 डेज से कम यूज किया है, तो उसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो भी हाफ हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट इन अप्लायंसेस पे नहीं मिलेगा। शिप्स है, एयरक्राफ्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, ऑफिस अप्लायंस है, मशीनरी प्रीवियसली यूज बाय एनी अदर पर्सन, उस पे भी नहीं मिलेगा।
मशीनरी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रीमाइसेस, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन और गेस्ट हाउस, इसमें भी डेप्रिसिएशन का, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6, बहुत इसको हम 5 टू 7 मार्क में पूछ सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें कवर किया है। एक्स लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इन राजस्थान। देखो इसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। अब अगर कोई एसेट परचेज करता है तो उस साल में उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल सकता है। 1998 से ये बिजनेस कर रहा है, बट आपको एडिशनल एसेट परचेज किया वो 2005 के बाद का परचेज होना चाहिए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 द फॉलोइंग एसेट्स आर एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज। देखो ये पूरा ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 में कंसीडर किया है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ब्लॉक 1 का 15%, ब्लॉक 2 का 30%, ब्लॉक 3 का 40%। यू हैव टू क्लासिफाई द एसेट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एसेट्स एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज इन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। तो उस यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको करके दिया है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स में एसेट्स कितना है, 11 है, 12 है और 17 है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2022 इज 18 लाख, 25 लाख एंड 5 लाख। एडिशनल प्लांट परचेस ड्यूरिंग द प्रीवियस है, प्लांट ए को 57 लाख में परचेस किया है, प्लांट बी को परचेस किया है 4 लाख में एंड प्लांट सी को परचेस किया है 17 लाख में, और अलग अलग ब्लॉक में है। प्लांट ए 1 फर्स्ट ब्लॉक में है, प्लांट बी सेकेंड ब्लॉक में है और प्लांट सी थर्ड ब्लॉक में है। एंड सोल्ड सेल ऑफ ओल्ड प्लांट्स, यहाँ पे सभी में से एक एक प्लांट सेल किया है और जो यहाँ पे 8 है उसकी जगह पे 8000 है। प्लांट ब्लॉक 1 में एक असेट सेल किया है, उसका वैल्यू 8000 है। सेकेंड ब्लॉक में 28 लाख 70,000 का असेट सेल किया है एंड थर्ड ब्लॉक में 42 लाख का असेट सेल किया है। प्लांट ए बी सी आर अक्वायर्ड ड्यूरिंग मई 2022। सबको परचेज तो कर लिया था मई में, बट इट इज पुट टू यूज ड्यूरिंग सितंबर 22, मींस 180 डेज से यूज करना स्टार्ट कर दिया था। अब प्लांट, हाउएवर प्लांट बी इज पुट टू यूज इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च। अब देखो जब भी आप प्लांट बी का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो और प्लांट बी ब्लॉक 2 में फॉल हो रहा है तो उसका आपको हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप उसको 180 डेज से यूज कम करते हो मीन्स हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो यहाँ पे उसको यूज करना स्टार्ट किया था लास्ट वीक ऑफ मार्च में, मीन्स लेस देन 180 होगा ही। अब आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल गेन चार्ज करना। अगर आपको कैपिटल गेन बोला है तो ही लिखना है, बाकी डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन पे आपको सम खत्म कर देना है। तो आपको देखो सेम जो लिखा है उसी तरह से आपको यहाँ पे भी वापस बनाना है। वेदर एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल प्लांट ए में, बी में और सी में, तो यस सभी कंडीशन सेटिस्फाई होता है। क्यों सेटिस्फाई होता है? क्योंकि तीनों तीन प्लांट आपने 2005 के बाद परचेज किया है एंड सभी बिजनेस उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% आएगा, प्लांट बी में 10% आएगा और प्लांट सी में 20%। यहाँ पे 10% क्यों आया भाई? क्योंकि यहाँ पे 20% मिलना चाहिए था, बट प्लांट बी को आपने यूज किया था 180 डेज से कम, इसलिए आपका रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% से कम होके 10% हो गया। अब एक्चुअल कॉस्ट क्या था? प्लांट ए का 57 लाख, यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे 17 लाख। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 11 लाख 40,000 एंड 3 लाख 40,000, टोटल हो गया 15 लाख 20,000। इतना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल गया। तो सबसे पहले हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे कितना मिलता था ना, वो कैलकुलेट कर लिया, सम को यहाँ तक खत्म कर दिया। अब अपना सम वापस नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे काउंट होता है उस पे जाता है। तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3, rate of depreciation 15%, 30% and 40%, and you are writing all the amounts in rupees. ओपनिंग WDV था 18 लाख, 25 लाख, 5 लाख, उसमें परचेज किया रिस्पेक्टिवली। जो जो ब्लॉक में परचेज किया है वो हमने पर्टिकुलर ब्लॉक में लिख दिया। टोटल हो गया 75 लाख, 29 लाख एंड 22 लाख। उसमें से सेल माइनस किया, फर्स्ट में 8000, सेकेंड में 28 लाख 70,000 एंड थर्ड में 42 लाख। अब रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑन March 31, 2023, सबका रिटर्न डाउन वैल्यू भी हमें मिल गया। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब देखो नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्लांट ए में कितना मिलेगा, तो प्लांट ए का ब्लॉक का डेप्रिसिएशन का रेट था 15%, सेकेंड का 30% एंड लास्ट का 40% था। तो यहाँ पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। तो इसका आप अगर 15% करोगे तो आपको 11,23,800 मिल जाएगा। इसका आप 15% करोगे। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली ब्लॉक का वैल्यू है
30% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बट देखो मैंने आपको अभी समझाया कि ये 30,000 है, अब वो जो प्लांट बी है उसी का हिस्सा माना जाएगा और प्लांट बी पे हाफ डेप्रिसिएशन मिलता है। तो यहाँ पे 30% नहीं मिलेगा, आपको डेप्रिसिएशन कितना मिल जाएगा? 50%, 15%। इवन द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक जो है उस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 30% चार्ज करना है। देखो यहाँ पे लिखा है 30%, बट फिर भी हम 15% क्यों चार्ज कर रहे हैं? बिकॉज ये प्लांट बी का हिस्सा है और प्लांट बी पे हमें हाफ डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसीलिए हमने 15% चार्ज किया डिप्रिसिएशन। तो 30,000 पे 15% 4,500 आएगा। और जो ब्लॉक 3 है उसका वैल्यू जो है वो नील हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बिकॉज मैंने आपको पहले सिखाया था कि अगर आपका ब्लॉक वैल्यू जीरो हो जाता है या ब्लॉक एम्प्टी हो जाता है तो यहाँ पे कोई डिप्रिसिएशन नहीं मिला। इस केस में ब्लॉक का वैल्यू जीरो हो गया, तो यहाँ पे कोई नॉर्मल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन एज कंप्यूटर अर्लियर, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा ही, जो हमने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो लिख देना है। तो अब डेप्रिशिएटेड वैल्यू, अब ये जो 74 लाख 92,000 है उसमें से ये दोनों माइनस करना है, तो ये आपका डेप्रिशिएटेड वैल्यू बन जाएगा। अब ऐसे 30,000 में से 4,500 एंड 40,000 दोनों माइनस करोगे तो आंसर नील में आ जाएगा। एंड इसमें से तो आपको ऑलरेडी नीलत था, तो नील आंसर यही रहेगा। बट ये याद रखो, आप एडिशनल डेप्रिसिएशन आप लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे सम हमारा कंप्लीट हो गया कि कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। बट एक और क्वेश्चन भी पूछा है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस काउंट करना है तो किस तरह से काउंट करोगे? तो अगर आपको पूछा है तो ही लिखने का, बाकी नहीं लिखने की जरूरत। यहाँ पे सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड प्लांट 8,000, 28 लाख 70,000 एंड 42 लाख में सेल हुआ है। अब वेदर कैपिटल गेन टैक्सेबल है कि नहीं है? ये दोनों केस में टैक्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लॉक जो वैल्यू है ना फर्स्ट केस में अभी भी एम्प्टी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑन अप्रैल 1 2023 में बचा हुआ है। इसलिए यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन का, सॉरी, यहाँ पे आपको कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा। और यहाँ पे जो है ना वो अभी भी ब्लॉक का वैल्यू जो देखो यहाँ पे भी 30,000 बचा हुआ था, इसलिए यहाँ पे भी 30,000 है, इसलिए आपको यहाँ पे भी कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा। बट लास्ट वन है जो ब्लॉक वैल्यू ही जीरो हो चुका है, उसमें आपको कैपिटल गेन काउंट करना पड़ेगा। तो देखो 42 लाख में सेल किया था और आपने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो आपका टोटल आपने प्लस माइनस करके 22 लाख, ये रहा देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो माइनस करोगे तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 20 लाख का माना जाएगा। तो इसलिए अगर पूरा सम पूछते हैं तो आपको 5 to 7 मार्क में आ सकता है, और शॉर्ट सम पूछते हैं तो थोड़े छोटे मार्क्स में इसको हो सकता है, डेप्रिसिएशन या नॉर्मल डेप्रिसिएशन। Thanks for watching my video till end. If you have any doubt related depreciation, you can write down in a comment box. I will try to make reply for the same. Have a nice day. Bye.